If you ever feel that the odds are against you, think of this man. Family business goes bankrupt in his teens, drops out of college, leaves home with just 17 rupees in his pocket, yet builds a successful business in an unfamiliar big city, clears family name by repaying debts, skillfully steers his small business into a massive conglomerate. My DNA has been very, very clear that I was a determined kid, and I think so am I even now. With zero experience but with tremendous self-belief, storms into exports and packaging, achieves massive success. Today, a third of humanity brush their teeth with toothpaste that comes in tubes manufactured in his group's factories. Success makes him restless to try newer things. My track record is 9 pioneering businesses in India for the first time, 6 of them successful, 3, of course, not successful. Builds India's first amusement park. Response lukewarm due to bad connectivity. Doesn't lose heart. Vows to take entertainment to every entertainment-starved Indian home. Launches India's first private TV channel against all odds, including prevailing law. Brings about change in the country's broadcasting regulations. Starts an entertainment industry that gives employment to more than 2 million people today. Becomes a household name. If your intentions are honorable, the system, the bureaucracy, the polity can delay your things, but they cannot stop you. They don't want to stop you, actually. And then, overnight, loses billions in the stock market crash. Does he give up? My grandfather said कि बेटा अगर अच्छे घुड़सवार बनना है तो घोड़े से गिरना भी सीखो. गिरो पड़ोगे तभी सीखोगे घुड़सवारी. He finds peace through Vipassana. Almost builds and launches a satellite. Builds 2,100 lane kilometers of highways and a 4 billion plus infra business in less than a decade. Yet he always finds time to give back. I'm devoting substantial time of mine in socio-economic well-being of the society, India and the global humanity. But I'm still asking my colleagues in the business that do whatever business you do now onwards must have a social vision. Helps run more than 52,000 single-teacher Ekal schools in remote rural India. Plans to help build smart cities and smart villages and a stronger, more independent India. Never takes no for an answer. Treats every failure as a stepping stone to success. Has a vision, a mission, and a burning desire to make it happen. Inspires millions with his list of achievements and is still busy adding to that list. An Indian leader capable of helping India triumph over domestic and global challenges. An ordinary man with extraordinary determination. A man called Dr. Subhash Chandra. Namaskar, dear parents, Dr. Rakshit, Dr. Murthy, and dear students. My apologies that I am not amongst you personally due to my prior engagement. As you all know that I belong to Haryana and I am also currently Member Parliament from Haryana to Rajya Sabha. But I am sure soon I would love to see you in person and discuss. The entrepreneurial issue which I am asked to discuss today, बड़ी सरल सी भाषा में अगर हम इसको 2-3 भागों में बांटें तो और उसको अगर आप सुनेंगे, मैं अभी बोलने वाला हूँ, अगर आप समझने के बाद आप कहेंगे कि क्या इतना ही आसान है? हाँ दोस्तों, बहुत सी चीज़ें जो दिखने में आसान लगती हैं वो कभी कभी कठिन भी होती है और बहुत बार क्योंकि वो चीज़ें दिखने में इतनी आसान लगती हैं तो हमारा मनुष्य का दिमाग क्या है, वो उस पर भरोसा नहीं करता कि इतना आसान तो नहीं हो सकता ये। तो इसलिए हम उसके अंदर पूरा विश्वास ना करके कुछ ना कुछ और ढूंढने लगते हैं।
तो और उसकी वजह से कुछ नहीं कर पाते हैं। तो एक बार जो मैं कहूँ आप समझिए, इसको करके देखिए, अगर आपको लाभ हो तो दूसरों को भी रिकमेंड करिएगा। क्योंकि मैं जो ये सब कर रहा हूँ आजकल डीएससी शो के माध्यम से, वो मुझे कोई पैसा कमाना या मुझे उसके अंदर कोई अपना ख्याति अर्जित करना, ये सब मकसद नहीं है। केवल मकसद यही है कि अपने देश के जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो कल के आने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको अपना मैं तजुर्बा बांट सकूं, एक्सपीरियंस बांट सकूं। मेरे पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल एक्सपीरियंस है। बल्कि पंजाबी की भाषा में अगर समझें तो पंजाबी में किसी ने कहा, भाई किन्ना पढ़िया है तू? कह जी पढ़िया नहीं है, गुड़िया है। तो मेरे पास तो यही है। आई होप इट इज़ यूज़फुल टू यू। एक सबसे पहली चीज़ तो आपको हमको सबको समझनी पड़ेगी। ज़िंदगी में 3 चीज़ें काम आती हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। एक आपका ज्ञान यानी एजुकेशन, यानी दूसरा आपकी एक्सपीरियंस, तजुर्बा, और तीसरा एक है टैलेंट। ज्ञान को मैं नॉलेज का रूप में कहूँगा। नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड। जैसे कि आप आज यहाँ पढ़ रहे हैं रोहतक में, तो यू आर गेनिंग नॉलेज, योर टीचर्स आर ट्रांसफरिंग नॉलेज टू यू। और शायद मैं भी आपको जो कह रहा हूँ उससे भी मैं अपना कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ आपको बांट रहा हूँ। दूसरा एक्सपीरियंस यू कैन गेन, और यू कैन check with person like me, experienced person, and then you can apply that experience. लेकिन जो टैलेंट है, वो टैलेंट हम में, आप में, हर एक में जन्म से होता है। मैंने अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जहाँ पे कई बार आजकल एडवर्टीज़मेंट देखते होंगे आप कि टैलेंट की क्लासेस वो कहते हैं हम लेते हैं। टैलेंट हम आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 15 दिन, महीना, 2 महीना, हज़ारों डॉलर की फ़ीस लेते हैं वो। मैंने वहाँ भी चैलेंज किया, हार्वर्ड में भी जाके, वॉर्टन स्कूल में भी, कि ये गलत आप कहते हैं, टैलेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, आइदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट। लेकिन टैलेंट किसी न किसी प्रकार का हम सब में है। और जो पुराने हमारा एजुकेशन सिस्टम था, जो ब्रिटिशर्स ने ख़त्म किया इस देश में से, वो एक यही था कि जिस स्टूडेंट का जो टैलेंट था, उसी के अनुसार ही उसको शिक्षा दी जाती थी, उसका सिलेबस बनता था। जैसे कि आज अगर एक बीमार आदमी, उसको कुछ चीज़ है, तो आपकी शरीर के लिए आपको दवाई अलग दी जाएगी। ये नहीं है कि हर टाइफाइड वाले को, सभी को एक ही टाइफाइड की दवाई दे दी जाए। आज जब मेरे को मेरी पॉकेट के हिसाब से, मेरे खर्चा सहन करने की शक्ति के हिसाब से मैं छोटा बाइक लेता हूँ या बड़ा मोटरसाइकिल लेता हूँ, उससे ज़्यादा पैसे हों तो मैं छोटी कार लेता हूँ, उससे मीडियम कार लेता हूँ, बड़ी कार लेता हूँ। तो जब हर चीज़ के लिए मेरे हिसाब से आप सूटेबल चीज़ बना के दे रहे हैं आज, दिनमरिया की चीज़, कोई भी चीज़, तो एजुकेशन क्यों नहीं? जबकि हमारे यहाँ एजुकेशन पहले से इसी प्रकार से था कि जिसका जो टैलेंट, उसी के अनुसार उसको शिक्षा दी जाती थी। खैर, आज भी मैं कहता हूँ कि अगर आप अपना टैलेंट पहचान लें, और टैलेंट पहचानेंगे कैसे? जिस चीज़ को करने की इच्छा आपको बार बार हो, जिस बात को करने का मन बार बार चाहे, वही चीज़ को पकड़ के सूत्रधार बन के उससे आगे चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेरे अंदर इस प्रकार का टैलेंट है।
मेरे अंदर लोगों से बातचीत करने की इच्छा रहती है, क्षमता रहती है, इसका मतलब आई कैन बी ए वेरी गुड PR पर्सन। मेरे अंदर ये बिज़नेस किस प्रकार से दुनिया में होता है, मैं बिज़नेस वाले लोगों की बार बार चीज़ें पढ़ना चाहता हूँ, अखबार पढ़ना चाहती हूँ, बिज़नेस के बारे में जानना चाहती हूँ, तो इसका मतलब आपका बिज़नेस की तरफ एप्टीट्यूड है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो उसको पहचानें, अगर उसके अनुसार अपनी शिक्षा लें और उसी के अनुसार अपना काम भी कल को, अगर जैसे पढ़ाई ख़त्म करेंगे अपना बिज़नेस भी को ढूंढें तो उसी प्रकार का ढूंढें जिसमें आपकी रुचि हो। रुचि यानी टैलेंट, टैलेंट यानी रुचि, इस प्रकार की एक संभावना आपस में बनती है। तो एक तो ये रहा कि आपका टैलेंट क्या है, उसको पहचान के उसके अनुसार ही बिजनेस करेंगे तो लाभदायक होगा। दूसरी चीज़, अपने आप में विश्वास, फेथ इन योरसेल्फ। मैं आजकल DSC शो की वजह से जितनी भी चिट्ठियाँ मुझे आती हैं, मेल आती हैं, प्रयास करता हूँ जवाब देने का सबको। उनको एक ही चीज़ मुझे लगती है, लोगों में अपने आप में विश्वास नहीं है, अपने शक्ति, अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं है। इसके लिए मैं बहुत लोगों को लिखता हूँ कि स्वामी विवेकानंद की जो कुछ पुस्तकें हैं वो लेके पढ़िए। उसमें आपको समझ में आएगा कि स्वामी विवेकानंद ने पहचाना कि हम मनुष्यों में किसी प्रकार के काम को करने की पूरी क्षमता है, हमारे अंदर कोई प्रकार की लिमिटेशन नहीं है, हमारी कोई सीमाएं नहीं हैं। ये तो सीमाएं हम अपने आप बना लेते हैं, अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं, अपने आप हम सोचने लगते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती या ये कर सकता हूँ, तो हम अपनी लिमिटेशन बना के कर लेते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मनुष्यों की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हम उसको पहचानें, और उसको पहचानेंगे कब? जब हमें अपने आप पर भरोसा होगा, अपने आप पर आत्मविश्वास होगा, अपने आप पर फेथ होगा। तो कुछ भी करने से पहले अपने आप पे फेथ रखिए, अपने आप को, अपनी शक्तियाँ जो आपको सक्सेस के द्वार पर ले जाएंगी उनके ऊपर भरोसा करिए। तो वो अगर करेंगे तो भी आपको कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये दूसरी बात मैं कहता हूँ। तीसरी बात, 90% से ज़्यादातर लोगों के ऊपर लागू होती है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ, और आप में से जो सुन रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि भाई पता नहीं ये लेक्चर कब ख़त्म होगा, मैं अभी तो मुझे जाना है, अपने भाई के लिए दवाई लेनी है, या अपने गर्लफ्रेंड को मिलना है, या कुछ और करना है। तो क्या हो गया? अब मैं जो बात कह रहा था वो आपके दिमाग में नहीं आएगी, क्योंकि आपका दिमाग चला गया आपको आगे क्या करना है, फ्यूचर में चला गया। तो और या फिर कई बार ये होता है कि हाँ, ये बात सुनते सुनते आपका दिमाग पीछे की किसी घटना पे चला गया। तो उसका नतीजा ये होगा कि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, ना समझेंगे। जिस तरह से आप टीचर की बात क्लासेस में नहीं कई बार सुन पाते हैं, इसीलिए नहीं सुन पाते हैं। और जो काम करते हैं, मान लो एग्ज़ामिनेशन में पेपर दे रहे हैं, पेपर लिखते लिखते आपका दिमाग आगे पीछे चला गया, यही दिमाग में आ गया कि अरे अगर मैं फ़ेल हो गया तो। जैसे ही मन में ऐसा आ गया कि फ़ेल हो गया तो आपको जो कुछ भी शब्दों, जो भी प्रश्नों के उत्तर मालूम भी थे वो भी निकल जाएंगे दिमाग से। तो ये एक बड़ी बात है, आपको अपने आप को प्रेजेंट में रखना। प्रेजेंट में कैसे रखा जाए, ये तो एक कला है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कोई दवाई किसी ने पिला दी और आप अपना प्रेजेंट में रहने लग गए। प्रेजेंट में रहने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जब जब आपका दिमाग, क्योंकि दिमाग चलायमान है, बहुत चलायमान है, आपको पता नहीं लगता कब वो कहाँ चला गया, परंतु सजग रहने से आपको पता लगेगा कि अरे दिमाग तो भाग गया, उसको वापस लाइए। फिर जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का दूसरा नाम है लिविंग इन प्रेजेंट। तो जब आप अपने
काम के ऊपर ध्यान देंगे पूरी तरह से, बिना अपने दिमाग को पास्ट या फ्यूचर में जाए बिना, उसका एक्शन बड़ा डायनामिक होगा। आप जो काम को समझना चाहते हैं तो ठीक से समझ पाएंगे, जो काम करना चाहते हैं उसको ठीक से कर पाएंगे। आपको कोई डर नहीं लगेगा, किसी प्रकार के फेल्योर का डर नहीं लगेगा। तो लिविंग इन प्रेजेंट इज़ द मंत्रा ऑफ लाइफ। और कोलोकियल लोकल भाषा में हम कहते हैं, भूतकाल व्याकुल करे या भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। तो ये एक गुरु मंत्र है, आप लेके जाइए आज यहाँ से। और चौथी बात मैं कहूँगा, और उसके बाद अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मुझे मेरी मेल आईडी पर भेजिए या मेरे ट्विटर पे मुझे फॉलो करिए, उस पे भी लिख सकते हैं प्रश्न। तो चौथी चीज़ ये है कि डर। बहुत सी मेल मुझे आती हैं जो लोग कहते हैं कि हमें हमारा इस बात का डर लगता है, डर की वजह से मैं क्लास में बोल भी नहीं पाती हूँ, डर की वजह से मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाता हूँ। बहुत से युवा ऐसा लिखते हैं कि मैं हकलाने लगता हूँ, हकलाता हूँ। तो ये सब होता है डर की वजह से। और डर क्या है? डर एक बड़ी भयंकर तकलीफ़ है। डर हर सेकंड, हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करता है। अभी डर इतना सा लग रहा था, थोड़ी देर में देखेंगे डर इतना हो गया, और बढ़ा गया, और बढ़ गया। यानी उसकी कोई सीमा फिर नहीं है। और जब डर आपको घेर लेता है तो आपकी सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, आपका विचार करने का ख़त्म हो जाता है, आपकी हर प्रकार की शक्तियाँ एक प्रकार से निरस्त हो जाती है। डरिए मत। और डर भी फिर एक बार, डर भी कब होता है हमें? जब हम सोचते हैं, जो दिमाग जब फ्यूचर में जाता है उसी से डर पैदा होता है। फ्यूचर में गए, ये लगा कि अरे फेल हो गए तो, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो, मैं 4 साल से अपने माता पिता का बहुत पैसा यहाँ खर्च कर रहा हूँ इस कॉलेज में, अगर पास नहीं हुआ तो क्या करूँगा ज़िंदगी में, मुझे कोई गलत जीवन साथी मिल गया तो क्या करूँगा, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली तो क्या करूँगा। किसी बात से डरने की नहीं, डरेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सब 4 मूल बातें हैं ज़िंदगी में हर तरह की सक्सेस पाने के लिए। चाहे भले ही वो आप एंटरप्रेन्योर बने कल को, चाहे आईएएस अफसर बने, एग्जीक्यूटिव बने, कुछ भी बने, ये 4 बातें सब पर लागू होती हैं बराबर की भाषा में। अंत में एक बात कहूँगा कि जो कुछ है, जो कुछ भी है, वो सब आपके अपने शरीर के अंदर है। इस सर के ऊपर से लेके और नीचे पाँव तक पूरा ब्रह्मांड इसी में है। आपको किसी भी प्रश्न का जवाब चाहिए, अपने आप से पूछिए। आपका अपना जो अंदर है वो आपको सही जवाब देगा। हम बाहर ढूंढते रहते हैं अपने प्रश्नों के जवाब, लेकिन है अपने आप, अपने अंदर। ठीक है, ये कठिन है जानना पहचानना, लेकिन मैं और रेकमेंड करूँगा आपको कि विपस्सना एक प्रकार का ऐसी विद्या है जो आपको अपने अंदर झांक के आपके अंदर क्या हो रहा है उसको देखने की कला सिखाती है। और उसी से बहुत सी बातें आपको अपने जीवन की जो प्रश्न है उनके उत्तर मिलते हैं। इसके साथ फिर एक बार धन्यवाद आपकी फैकल्टी का, मिस्टर मूर्ति और रक्षित जी का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आपसे रूबरू होने का। आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।